Ritika, hi. It's been long time Hello, sir. since we spoke. Yeah, yes. Yeah. Yes, sir. It Okay. has been a long So time. I hope you're doing great. Of course, there is a health issues that you are talking about. So what you're going to do Yeah, is, sir. there were a few questions. First question is your health issues. The second is about your studies and what's going to happen. And what is the third question that you had in your mind? About union budget. Union budget. All right. All right. I think you're too young, but since you asked this question, let's see Yes, sir. what Actually, can I'm we. interested in all of these things, You are. all such kind of things. I'm interested in such kind of things. Okay, you're interested. Great, great. It's great to see youngsters getting interested in policies of the country. It's very important, and I have full trust that and I really hope that youngsters of this country start taking things seriously as far as the country's future and financial policies are concerned. Of course, they're gonna affecting. They will be affecting you in one way or other. So let's see. Okay, let's go to straight to the chart and see how things are forming. Okay, we will go to the chart first, your chart, and then maybe we can go for the transits chart. So let's see. So let me know when you start seeing the chart. Okay, sir. You can see the chart. Yes, sir. Now it's Okay, now, visible. great, great. So let's see. Let's see how why first is we are going to tackle your health issues, right? What's going to happen is we're gonna I'm gonna this is your chart. We have a Ketu in six, and this is a problem, big problem, because the six is your lagna as well. There is a Ketu. Obviously, this stays stone. Okay, Ketu is stone, simply as that. And stones and gallbladder are also it's depicted in six, as well as that is Virgo, as well as your Libra. So this is a Jupiter and Moon, where it's केतु के बहुत पास है, तो ये एक इशू है. और उसके बाद देखते हैं कैसे चल रहा है. ठीक है. So what I'm going to do is I'm going to take blue color and start placing the transits here. So Saturn is here right now. Sorry. Okay, hold on. Okay, so Saturn is in 10, that is Capricorn, right now, and 11 has Jupiter. Okay, great. So it's in green, I guess. Okay. So now let's understand Mars. One of the most profound thing would be Mars, since Mars is health. So we're going to see where Mars is. Mars is right now in Sagittarius. Okay, here, and also Venus is also here with the Mars. All right. So this is the main problem. And where are Rahu and Ketu? Rahu and Ketu are Rahu is in 2 and Ketu is in 8. This is the basic idea. Now 10 also has, that is your fifth house, also has Mercury, okay, which is a very important planet as far as studies are concerned. And this has Saturn and Mercury and Mars, Venus. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and then there is, of course, Mars, Venus, Ketu, Saturn, Mercury. Okay, there is a Sun. Okay, so Sun is also into Capricorn. Now let's see why the health issue is coming. First and foremost, you have right now the transits of Rahu and now let's understand this Rahu and Ketu first, because as you can see from your natal, Mars is 6 degrees. Okay, it's very, very close. So we can consider Mars as right here is 6 degrees, as well as right here. Okay, so Mars has just crossed this zodiac of Taurus, where right now Rahu is there. So this is one. Okay, this is one. This is the first problem is Mars natal has Rahu transits. Okay, this is one. Okay, now let's understand the stuff. Let's understand the transit. So we are going to see Mars transit here. Okay, Mars अभी कैसे है और उसके पास आसपास क्या है. So Mars transit has Venus, which is kind of okay. Now Mars has also got Ketu, which is again it's okay.
But however, when Mars is right now hemmed between two problematic planets, okay, one is one is the Venus. So Mars has Venus. Yeah, Mars has Venus in its conjunction, and plus Mars has its very dire enemy of Saturn. Okay, so Mars is So right there is a now, side effect. yeah, Mars has both. Its effects on it. Yeah, that's what I'm saying. So Mars has Venus and Saturn, and Mars is in Sagittarius. So what is happening is Mars is your health कारका. So this is where we the result are. We are going to अब हम result discuss करेंगे. तो हेल्थ कारका जब वीनस और सैटर्न के बीच में फंसता है तो ये प्रॉब्लम आता है. और ऊपर से हुआ क्या है, मार्स जो है खुद अपने राशि में है. ऑलराइट. और एक चीज याद रखना, आपके लग्न पे मार्स जो है एट्थ लॉर्ड होते हैं. ओके, एट्थ लॉर्ड. Okay. तो यहां पर मार्स क्योंकि अपने ही सैजिटेरियस में है और नेटल मार्स ट्रांजिट मार्स को देख रहे हैं, उसलिए हेल्थ इश्यूज यहां क्रॉप अप हो रहे हैं. हाउएवर हाउएवर एक दो हाँ जी तीन सर. चार एक दो तीन चार पांच, हाउएवर ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, इसलिए क्योंकि मार्स जो है आपका बहुत जल्दी हम अगर देखें यहां पर, तो मार्स बहुत जल्दी आपके कैप्रिकॉन में आ जाएंगे, जहां पर मार्स एग्जॉल्टेड होते हैं. ठीक है, कैप्रिकॉन में मार्स एग्जॉल्टेड होते हैं. और उसके बाद आएंगे आपके जुपिटर में. यहां पर जैसे ही आएंगे, यानी एक्वारियस में, ठीक है, तो फिर आपका ये हेल्थ प्रॉब्लम काफी हद तक आपको रिलीफ मिल जाएगा. अब वो कब आएगा, अभी समझ लीजिए यहाँ पर अभी मार्स का जो अभी डिग्री है, वो डिग्री अभी 17-18 डिग्री है. वहां से ये चला जाएगा 45 डेज, अनदर 45 डेज, यानी समझ लीजिए अबाउट 45-90 डेज, यानी 2 to 3 months का टाइम थोड़ा सा तकलीफदार रहेगा. बट यू नो एज आई सेड कि यहाँ पर 2-3 महीने में, लेट्स से इन द मंथ ऑफ फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल में आपका देखना आपका काफी रिलीफ मिल जाएगा, जहां पर आप जुपिटर के पास रहेंगे, क्योंकि जुपिटर की 5th दृष्टि भी यहां पड़ रही है. ठीक है, तो यहां पर जब मार्स आएगा तो यानी यू हैव टू वेट फॉर अंदर अप्रैल. बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं देगा, क्योंकि एक तो मार्स जो है आपका देह कारक वो खुद ही देख रहा है, और ऊपर से 10th जो लॉर्ड है आपका, ओरिजिनली 10th ऑफ लॉर्ड, वो इज वेल प्लेस्ड. ओके, आपका 10th लॉर्ड एग्जॉल्टेड प्लेस ऑफ जुपिटर में, ये देखिए. ओके, सो यहां पर अगर देखूं तो अनदर लेट्स से 20 डेज बाद ऑलरेडी रिलीफ चालू हो जाएगा, जहां पर आपका एक एग्जॉल्टेड प्लेस ऑफ सैटर्न इसको देखेगा. तो यहां पर सैटर्न का प्लेसमेंट क्योंकि अच्छा है, जहां पर मार्स आने वाले हैं कैप्रिकॉन में अनदर 20-22 दिन में. सो आई थिंक यू विल गेट अ रिलीफ ओवर देयर. थोड़ी बहुत तकलीफ रहेगी, लेकिन फिर भी काफी हद तक आपको रिलीफ मिल जाएगा. एक्चुअली गॉल स्टोन्स के साथ थोड़ा नर्व्स में भी प्रॉब्लम हो रहा है. ऐसे हाँ लगता है कि नर्व्स हाँ. वीक हो रही है. अ, नम सा फील होता है. ये देखिए, नर्व्स वीक होने का बहुत बड़ा कारण है मरकरी का प्रॉब्लम में आना. सो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका जो मरकरी है वो ऑलरेडी एक तो राहु में बैठा ही हुआ है, एक तो ये इशू है ही. ठीक है, यहाँ पर देखिए मरकरी राहु के साथ बैठा हुआ है, यहाँ पर इशू है. और दूसरा एक दो तीन केतु का भी एक दृष्टि आ रहा है. मरकरी और केतु का ना बहुत अच्छा नहीं रहता है. बट हाउएवर ये क्योंकि 8th हाउस में है, व्हाट आई कैन से इज आपका अगर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, वो रूट कॉज हो हाँ सकता है. जी. ओके, कॉन्स्टिपेशन का अगर प्रॉब्लम है आपका, मतलब आपका डाइजेशन का प्रॉब्लम है, आपका पेट साफ नहीं होता या समथिंग लाइक दैट. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज, यहां पर एक बहुत ही सिंपल सजेशन है हेल्थ को ठीक करने के लिए. टेक लॉट ऑफ फाइबर. फाइबर. फाइबर, फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज सीलियम हस्क, जिसको इसबगुल कहते हैं. ठीक है, अब सीलियम हस्क ले सकते हो. ओके. उसके बाद आप ग्रीन मूंग दाल ले सकते हो. ओके, ग्रीन मूंग दाल ले सकते हो, अच्छा. पीनट्स ले सकते हो. सो जिसमें फाइबर बहुत सारा है. ठीक है, फाइबर, ब्रोकली ले सकते हो, पालक ले सकते हो, ग्रीन वेजिटेबल्स. तो यहां पर आपका ये जो आएगा, जो आपका नर्व का प्रॉब्लम है, वो केतु की वजह से आएगा, वो है आपका फाइबर का प्रॉब्लम. और वो 8th हाउस जो है वो कब हमारा. तक ठीक होएगा फिर? हाँ जी. वो कब तक ठीक होएगा वो प्रॉब्लम फिर? देखिए, नर्व का प्रॉब्लम तो अप्रैल के बाद ही ठीक होगा, जब तक केतु जो है आपके यहां पर मूव नहीं कर जाता जुपिटर के पास. जुपिटर मून के साथ मूव करते ही साथ दिस विल बी ओके, वो अप्रैल के बाद. तो जैसे मैंने कहा कि आपका प्रॉब्लम जो है सारा अप्रैल तक चलेगा, तो मैं आपको ये कहूंगा कि अप्रैल तक थोड़ा सा
रिलैक्स रहिए, थोड़ा सा आपको वो करिए, फाइबर वगैरह लेते रहिए, ठीक है। और रही गॉल ब्लैडर की बात, गॉल ब्लैडर क्योंकि मार्स यहाँ पर काफ़ी सारा पीड़ित हो रहा है, और मार्स का 6 डिग्री भी है आपके इसमें 9th में, यानी मार्स आपका एक तरीके से अगर बोल सकते हैं तो मार्स आपका सन सूर्य में है। तो व्हाट आई सजेस्ट इज स्टे अवे, ओके, स्टे अवे फ्रॉम टू मच स्पाइसी फूड, Okay, ओके। sir. स्पाइसी फूड से आप दूर रहोगे तो आपको काफी हद तक, और गुड़ का सेवन और हनी का सेवन मत करना, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। लेट टेक ठीक है. लॉट्स ऑफ वाटर एंड फाइबर, ओके। सो मैं मेरे हिसाब से इसबगुल इज द बेस्ट, क्योंकि इसबगुल जो होता है वो आपको वाटर के साथ आप मिला के पीते हो, तो यहाँ पर आपको काफी रिलीफ मिल जाएगा, बोथ नर्व के लिए भी और आपका जो गॉल स्टोन्स के उसके लिए भी। बाकी तो आप ले ही रहे हो, आपका केतु वेल प्लेस्ड है, उसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आपका ये जो होम्योपैथी का है या नेचुरोपैथी या होम्योपैथी, यहाँ पर आपको काफी हद तक रिलीफ मिल जाएगा, बिकॉज केतु इज इन 6, ओके। नाउ 6 depicts big hospitals, also 6 में मरकरी का एक exalted place है, so Mercury is natural and Ketu is medicine, so natural medicine का जो आपका है system, I think it will help you a lot, okay। and जैसे मैंने कहा कि green मूंग दाल गिलोय, you can take aloe vera as well for your constipation and your nerve trouble, aloe vera juice, तो ये भी आपको काफी हेल्प कर जाएगा। I think you should do that। अब आते हैं कि आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो है एजुकेशन के बारे में, Education related. या एजुकेशन के बारे में जो आपका क्वेश्चन था। देखिए मरकरी इस वक्त 10th में है और सैटर्न के पास है, तो यहाँ पर थोड़ा सा काम वाम जरूर करवाएगा आपको, एजुकेशन में थोड़ी बहुत दिक्कतें देगा, मतलब दिक्कतें इन द सेंस कि यू हैव टू हाँ, वर्क हार्ड, यहाँ पर concentration नहीं है. हाँ वर्क हार्ड देगा थोड़ा सा, क्योंकि सूर्य अभी अभी मरकरी एक कंबस्ट भी था, अभी जाकर बाहर निकला है। हाउएवर व्हेन मरकरी कम्स इनटू अनदर 3-4 days, 3-4 दिन के बाद वो आपके ओरिजिनल वीनस के साथ बैठ जाएगा। दिस इज यानी 4th of February के बाद आपका स्टडीज में काफी हद तक मन लगेगा और बहुत अच्छी तरह लगेगा आपको। फाइन आर्ट्स में थोड़ा अचानक इंटरेस्ट आएगा, पोएट्री में थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, आपका राइटिंग स्किल्स आपकी अच्छी होंगी। और क्योंकि जुपिटर और मून है तो हो सकता है जुपिटर और मून जो है टैपिक करता है आपका सब्जेक्ट रिलेटेड टू माइंड एंड पोएट्री एंड स्टफ लाइक दैट, तो एस्थेटिक्स में आपका अच्छा इंटरेस्ट आएगा। यहाँ पर हिस्ट्री वगैरह में आपका कौन सा क्लास है अभी? 10th. 10th। सो आपका जो एजुकेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है वो समझ लीजिए 4th of February के बाद काफी हद तक आप उसको बेटर फील करोगे और काफी हद तक आपको रहेगा, अच्छा रहेगा। अभी थोड़ा सा केतु के वजह से होता क्या है, केतु थोड़ा सा कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम लाता है और हेल्थ इश्यूज भी लाता है, क्योंकि केतु Actually, 6 health में है, issues की की वजह से ही हो रहा health है। तो issues बस, की और वजह से concentration अनदर अनदर बहुत कम हो गया. या अनदर 5 days के बाद देखिए आप, जैसे ही मरकरी वीनस के पास आएगा, वीनस इज ऑल्सो अबाउट डीप लर्निंग, तो आप यहाँ पर लैंग्वेजेस की तरफ काफी अचानक इंटरेस्ट बढ़ जाएगा आपका। ओके, लैंग्वेजेस यू वुड लाइक टू लर्न लैंग्वेजेस एज वेल एज, जैसे मैंने कहा कि पोएट्री, आर्ट, एस्थेटिक्स, इसमें भी काफी इंटरेस्ट रहेगा आपको। जुपिटर मून जो है आपको पढ़ाई में डेप्थ देगा, आपका माइंड में क्लैरिटी रहेगी। और जुपिटर मून वीनस ये जो एक कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, सिंस यू वांट टू टेक मेडिसिन एज अ लाइन, तो यहाँ पर भी आपको, सो आई थिंक इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। अभी तो स्पेशलाइजेशन नहीं है, बट सर्टनली जो साइंस की तरफ आपका भी मन लगेगा, एंड बायोलॉजी विड बी योर फेवरेट सब्जेक्ट विच यू वुड लाइक टू डू। Yes, Yes, so yes, that is yes. when you will get an extraordinary interest in biology when Mercury goes into goes with Venus, conjunction जब होगा। So another 5 days, just relax, chill। 5 days के बाद आपको काफी Actually, हद तक मेरा वो भी weak मिलेगा। fear है studies में, वो mathematics है. ओके, I fear मैथमेटिक्स। this a lot. I fear a lot doing maths. हाँ, सो देखिए Actually, मैथ्स वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि मरकरी के पास राहु है और वो भी 12th हाउस में है, तो यहाँ पर मैथ्स में थोड़ा सा फियर रहेगा ही। और ऊपर से मरकरी 3 डिग्री में है, इट्स नियरली इन द वीनस। सो मैं ये आपको कहूंगा कि मैथ्स में इतना डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर बायोलॉजी और केमिस्ट्री में आप फोकस करोगे
तो आपको ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और अगर अब मैथ्स में थोड़ा बहुत प्रैक्टिस तो चाहिए होगा, उसमें कुछ कर नहीं सकते मैथ्स में, स्टैटिस्टिक्स वगैरह। और ट्वेल्थ जो होता है वो जुपिटर का वो होता है, जुपिटर मून के साथ बैठा हुआ है सेवेंथ में। तो यहाँ पर यही है कि आई वुड सजेस्ट यू टू स्टडी मैथ्स इन द नाइट टाइम। स्टडी नाइट टाइम। मैथ्स नाइट, आपको ज्यादा फायदा मिलेगा इससे, व्हेन थिंग्स आर क्वाइट एंड थिंग्स आर दैट वेज। एंड या सो यहाँ पर आपको काफी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा अगर नाइट टाइम में पढ़ोगे तो। एंड जुपिटर मून इन सेवेंथ ऑल्सो डिपिक्ट्स योर Venusian area. And so try to study in your bedroom. ओके। ओके, बेडरूम में बेड पे बैठ के नाइट टाइम में अगर आप पढ़ोगे, हल्की लाइट, क्योंकि मून ऑल्सो सेज लॉट अबाउट लैम्प, सो ट्राई यूजिंग लैम्प। ये सारी चीजें आपको उसको रिलीफ देने के लिए होगी, तो आपको काफी हद तक यहाँ रिलीफ मिलेगी। सो आई थिंक यू हैव टू वेट फॉर अनदर 5। एग्जाम्स आ रहा है। हाँ, सो 4-5 डेज को वेट टर्म करिए। के बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं सर। कब कब आए बोर्ड मतलब एग्जाम्स आपके? अप्रैल में है ना? डेट तो अभी नहीं आई। मार्च अप्रैल, अराउंड मार्च मार्च अप्रैल। आई देखिए, थिंक। अगर अप्रैल में आता है तो सूर्य के पास रहेगा, आपका 8th हाउस में जुपिटर मून रहेगा, तो बोर्ड एग्जाम में तो कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सुपर डुपर हिट आपका जाने वाला है, ये गारंटीड है। ऑलराउंड पूछना था, क्या परसेंट बनेगी, मतलब लाइक 80 to 90%? नहीं, उससे मैं ज्यादा? इस टाइप का कॉम्बिनेशन 90 to 95 दिखाता है। इस टाइप का कॉम्बिनेशन कि सूर्य में ही बैठे हुए हैं और जुपिटर मून है सेवेंथ में, तो यहाँ पर ये 80 to 90% दिखाता है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको जिसको कहते हैं सोशल स्टडीज में आपको काफी, अगर आप अच्छे हो सोशल स्टडीज में, सोशल स्टडी है ना आपका सब्जेक्ट, सोशल स्टडी में स्पेशली हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस विल बी योर की थिंग दैट इज गोइंग टू गिव यू अमेजिंग मार्क्स। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा सा रहिएगा। और संस्कृत है आपके पास? नहीं सर। संस्कृत नहीं है तो कौन सा लैंग्वेज है? सर 5 वो है सब्जेक्ट्स है, इसके अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं है। ओके फाइन। सो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड लैंग्वेजेस कौन सा है, लैंग्वेज है कोई स्पेशलाइज लैंग्वेज? नो सर। ओके फाइन, ग्रेट, ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक तो ये हेल्प करेगा जरूर। सो ट्राई एंड डू दैट थिंग। एंड अनदर, क्योंकि जुपिटर और मून जो है वो एक टाइप का साइंस भी डिपिक्ट करता है, ठीक है? तो साइंस में एज आई सेड बायोलॉजी वुड बी योर हाईलाइट सब्जेक्ट। सो आई थिंक योर योर सोशल स्टडीज जो है वो आपको एक इम्पॉर्टेंट आपको पुश दे देगा। सो आपको उतने घबराने की जरूरत नहीं है। बट दैट टाइम, अप्रैल का महीना है जहां पर सूर्य जो है आपके नेटल सूर्य में रहेगा और ऊपर से जुपिटर मून को देखेगा, तो आपको बिल्कुल ही टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एग्जाम आपका फैंटास्टिक जाएंगे, ये बिल्कुल गारंटी है। तो 90 to 95, इवन बियॉन्ड दैट आई एम एक्सपेक्टिंग, उससे कम तो आने से रहा। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, ये बहुत ही फैंटास्टिक होता है। और अब हम आते हैं या मैं स्टडीज को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड रहती हूँ, बहुत ज्यादा। हाँ, वही है ना, मरकरी के पास राहु है, तो यहाँ पर आपको करना ये है मेरे हिसाब से कि राहु को थोड़ा सा आपको ना वो करना पड़ेगा, उसको लोअर करना पड़ेगा। राहु स्ट्रेस देता ही है, राहु रिपीटेशन देता है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी दे देता है। और राहु इस वक्त 9 डिग्रीज में है 12th में, और फ्रैंकली ये सैटर्न में है। ओके, तो आपको जो स्ट्रेस आ रहा है वो मेरे हिसाब से, क्योंकि सैटर्न आपको 4th में है, तो सैटर्न जो है मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा लैक ऑफ डिसिप्लिन देता है। मैं आपको ये कहूंगा कि थोड़ा सा सुबह उठने का कोशिश करें, बिफोर सनराइज, बहुत इमेंसली हेल्प कर देगा। At times I feel like giving up. At times I हाँ हाँ seriously feel हाँ, like giving up. देखिए स्ट्रेस तो है ही, उसके हम कुछ Stress हो कर ही रहा नहीं होगा। सकते। तो सैटर्न को आप Understand हेल्प never कर, anymore. बिल्कुल आप वही है ना, सैटर्न को थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं। सैटर्न को कैसे, सुबह आप अगर उठें जल्दी, क्योंकि सैटर्न आपका एग्जॉल्टेड जुपिटर के प्लेस में है, दैट्स अ वेरी गुड प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न। तो व्हाट इज सैटर्न सेइंग? सैटर्न सेइंग कि डोंट बी लेजी इन योर होम। और दूसरी बात, एक चीज और मैं कहूंगा आपको
कि थोड़ा बाहर टहलने वहलने भी जाएं, सारा दिन घर पे ना बैठे रहें। ओके सर। ठीक है, थोड़ा सा मेक इट अ पॉइंट कि यू वेक अप अर्ली एंड देन गो फॉर अ वॉक इफ पॉसिबल, और इवन टेरेस में चले जाइए या कहीं भी, जस्ट गो फॉर अ वॉक, मेक योर बॉडी मूवमेंट थोड़ा सा करिए, और इससे आपका सैटर्न जो है जल्दी उठेंगे। और जल्दी उठ के ना बहुत जल्दी नहा धो लीजिए, फ्रेश हो लीजिए जितना जल्दी हो सके, because Saturn also likes discipline, and it's like people to sit, if they are especially students, to sit in a very holy, pious and साफ सुथरा way. Even I do it. ओके। मैं ऐसा आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद भी, मेरा क्योंकि मेरे को भी सैटर्न को ठीक रखना पड़ता है, बिकॉज दैट्स माई वर्क. सो वट आई डू इज आई क्विकली गेट अप 4:35 o'clock in the morning. That's my routine. Okay, 4:35 o'clock in the morning, quickly go for a walk, and then come back and take a quick bath, whether in hot water or cold water. That is your choice. I generally prefer cold water. Sometimes I do hot water. Even in winters, I do cold water because my Saturn is again saying like that. So after that, by 9 o'clock, 10 o'clock, I'm fresh, I'm ready to work. So यहाँ पर मेरा सैटर्न मेरे को काफी हेल्प कर देता है. तो यू कैन स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग डिसिप्लिन. बहुत देर तक लेजीली सोएंगे क्योंकि आपका वीनस का जो है वो 11th में है, और वो उसको ऊपर जुपिटर की दृष्टि आ रही है, तो थोड़ा सा लेजीनेस आ ही जाता है. तो इसका बेस्ट है सुबह उठो और जितना जल्दी हो सके नहा लो. ठीक है, और टहलने जाओ, बाहर काम करने जाओ. और दूसरी चीज, फोर्थ में अगर सैटर्न है तो मदर को थोड़ा सा हेल्प करा करो, काम काज पे. मैं यूजुअली करती हूँ। या ट्राई टू डू दैट, ट्राई टू डू मोर ऑफन, ट्राई टू डू हाउस होल्ड वर्क, थोड़ा सा जितना भी टाइम निकाल सको. तो दैट विल क्रिएट अ गुड वाइब ऑन द सैटर्न. एंड अगर सैटर्न ठीक है तो वो अपने आप डिसिप्लिन वगैरह सब ले आएगा. ओके सर। बिकॉज सैटर्न का एक दृष्टि सूर्य के ऊपर भी पड़ रहा है जिस वक्त आपका एग्जाम होने वाला है. सो वहां पर अगर आप अभी से डिसिप्लिन रखोगे तो एग्जाम का एंग्जाइटी वेंग्जाइटी सब चला जाएगा. मार्क माई वर्ड, इट इज गोइंग टू गो अवे. ठीक है. एक्चुअली मेरा एक या है, हाँ लाइक एक्चुअली आपको पता ही है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी हाँ है। हाँ हाँ तो यूजुअली सर, मतलब हमें अगर मॉर्निंग में हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हम अपना शाम में या दोपहर में अपना कैसे मैनेज करें, तो ओके. तब हम कभी ऐसा कुछ फ्री हो सकता है, हम फ्री हो सकते हैं इन सब चीजों से। देखिए, जैसे मतलब मैंने कहा अगर था हो कि जब तक जब तक देखिए, जब तक आपका 11th में, मतलब अप्रैल के बाद आपके वीनस के साथ सैटर्न बैठेंगे. ठीक है, तो वो वीनस को थोड़ा सा एक्टिवेट करेंगे, और मरकरी राहु के पास बैठ जाएंगे आपके जुपिटर. सो मैं ये कहूंगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन मरकरी राहु जुपिटर जो है, ये अच्छा है. यहां पर आपके घर में बिजनेस की वजह से पैसा आएगा, और सैटर्न क्योंकि वीनस को एक्टिवेट कर, तो अप्रैल तक वेट करिए. दैट्स व्हाट आई कैन से. या अप्रैल तक वेट करिए, क्योंकि आपका वीनस के पास सैटर्न का बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनता है. अब वीनस इज मनी, तो सैटर्न आपके पैसे को इस तरह एक्टिवेट करेगा. और मरकरी राहु है दिस डेपिक्ट बिजनेस. ओके, अच्छा बिजनेस. एंड क्योंकि जुपिटर वहां बैठेगा तो मरकरी राहु को भी वो एक्टिवेट कर देगा, जुपिटर. तो यहां पर क्या करेगा, राहु के जो मेलेफिक एरियाज हैं वो खत्म कर देगा, और कहीं ना कहीं आपको 12 इज अ डुअल साइन, तो मल्टीपल बिजनेस से आपको. सो फाइनेंशियल सिचुएशन जो आप कह रहे हो घर पे, वो आई एम क्वाइट श्योर आपका अप्रैल के बाद ठीक हो जाएगा. वाई? बिकॉज एक और बात है कि जब 12th में बैठेगा, मतलब आपके 7th हाउस में मीन में बैठेगा जुपिटर, उसकी 5th दृष्टि आपके सैटर्न पे आएगी, विच इज वेरी वेरी गुड, ब्रिलियंट. ओके. और सैटर्न की 10th दृष्टि जुपिटर, तो जुपिटर और सैटर्न आपस को देखेंगे, ये धर्म कर्माधिपति योग लगेगा. दिस इज वेरी वेरी रेयर एंड वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन. सो अप्रैल तक आप रुकिए, उसके बाद आपका पूरा रिवर्स गियर मारेगा एज फार एज फाइनेंशियल सिचुएशन इज कंसर्न. जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो एग्जैक्टली रिवर्स हो जाएगा. सो यू डोंट हैव टू वरी, आई थिंक, अबाउट योर फाइनेंशियल सिचुएशन. जस्ट वेट टिल अप्रैल. अप्रैल उससे पहले अपनी थोड़ा सा दिक्कत ही आएंगे. की वजह से हाँ हाँ. रिलेशनशिप में भी इश्यूज आ जाते हैं। देखिए, इतना मत सोचिए. बेसिकली यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज. ये रिलेशनशिप वगैरह ये अब भूल जाओ, बिकॉज अभी एक्चुअली आपका लाइक मदर डॉटर और इन सब में भी ऐसे इश्यूज आ जाते हैं। हाँ, देखो वो तो आएंगे ही, वो तो थोड़ा सा इशू आता है तो सब में आता है. तो मैं आपको ये कहूंगा, आप जल्दी उठें, बहुत सारे फायदे हैं.
जल्दी नहा धो के थोड़ा सा मदर का हेल्प करें, अपने आप मदर के साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप बनाए, अपने आप बनेगा वो, डोंट वरी। आप जल्दी उठोगे, नहा धो लोगे, जैसे ही आप 1-2 दिन करके देखो, तीसरे दिन आप देखो आपके मदर के साथ बेटर रिलेशनशिप होने लगेगा, ये गारंटीड है। दैट इज व्हाट सैटर्न इज सेइंग, सैटर्न इज आस्किंग यू टू गेट डिसिप्लिन्ड अ बिट मोर, दैट्स ऑल। थोड़ा सा सुबह उठिए, सनराइज के पहले अगर आप उठने का प्रैक्टिस कर लें अभी से, तो इट विल हेल्प यू इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेज. So I would advise you to get up that, just do this one small kriya of getting up early, and you will have a profound effect in all sorts of things, in your life. Okay, ठीक है, sir. I hope I am able to answer your question as far as the budget, union budget is Yes. concerned. I tell you what, I am bringing out a comprehensive video on that. So I am going to talk about that video because ये video थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं. So what I'm going to do is I'm going to talk about that union budget very soon, maybe tomorrow itself. I'm going to pull that video out, and then you can I will discuss that there. And if you have any queries on that, how did I come or what is going to happen, then we can talk again. First, see that video. That's what I'm saying. First, so that थोड़ा सा हम लोग एक ही पेज पर हों. So I hope you have answered your question, and let me know if you have any other queries. Okay. Okay, sir.